डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो 5 मॉड्यूल्स दिए गए हैं, उन 5 मॉड्यूल्स में से जो पहला मॉड्यूल है दैट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हमें क्या क्या स्टडी करना है, सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स को समझा जाए जो इंटरमीडिएट में आप पढ़ के भी आए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, इसका क्या एप्लीकेशन होगा, ये धीरे धीरे हम लोग इन चीज़ों के बारे में समझेंगे, लेकिन पहले हम फंडामेंटल्स के बारे में आते हैं। पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में आप पहले से ही जानते हैं कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एरे इज नोन एज मैट्रिक्स। मीन्स कलेक्शन ऑफ नंबर्स arranged in the form of array is known as matrix, and each number is known as entry, or it is known as elements of the matrix. Entry or elements of the matrix. We denote the matrix by such square brackets or small brackets. That is, A equals, if we take an example, A equals Aij, and we can write it as A11, A12, A13, and dot dot A1n. Next is A21, A22, A23, and so on A2n. A31, A32, A33, and so on A3n. And continuing this process, AM1, AM2, AM3, and dot dot AMN. See here, we can write matrix as A equals, inside we can write Aij, and these elements are known as A11, A12, A1n. These elements are known as entries of the matrix A, or these are known as, we can say, elements of the matrix A. And the horizontal line is known as row. It is known as row, and vertical line is known as column of the matrix. Thus, it is, you can say, it is the first row denoted by R1. You can say it is the second row, and you can denote it by R2. You can say it is the third row and denoted by R3, and so on. And you can say it is the first column C1. You can say it is C2. You can say it is C3, and so on. In this matrix, total number of rows are m, and total number of columns are n. You can say it is mth row, and you can say it is nth column. So in this matrix A, there are total m rows and n columns, and these are entries or elements of the matrix. Amn denotes the common elements which lies in the mth row and nth column. So thus we can say horizontal line denotes row and vertical line denotes column. It's okay. Now we comes on type of matrix. Type of मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स के नाम लेते हैं वो कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से आप समझ लें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। A matrix in which number of rows and number of columns are not equal. And example of the rectangular matrix is A equals 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6. See here, in this matrix, it is first row, it is second row, and it is third row. फर्स्ट रो का एलिमेंट्स हो गया 1 2 3 4, सेकंड रो का एलिमेंट्स हो गया 2 3 4 1, थर्ड रो का एलिमेंट्स हो गया 3 4 5 6, और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स हो गया 1 2 3, सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स है 2 3 4, थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट 3, दूसरा एलिमेंट 4, तीसरा एलिमेंट 5, इस तरीके से फोर्थ कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं क्रमशः 4 1 एंड 6। तो कुल मिला के इस मैट्रिक्स में 3 रोज and 4 columns हैं, therefore order of this matrix is 3 cross 4. First of all we write row, after that we write column. So in this matrix there are 3 rows and 4 columns. We can see that number of rows and number of columns are not equal, therefore such type of matrix is known as rectangular matrix. Next we start square matrix. नाम से ही क्लियर है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स जिसका शेप मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 1 2 3, एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 2 3 4 एंड 3 4 5। देखा जाए इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो 1 2 3, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो गए 1 2 3, सेकंड रो का एलिमेंट हो गया 2 3 4, और थर्ड रो का एलिमेंट हो गया 3 4 5, और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 1 2 3, सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं 2 3 4 है, और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स या एंट्री जो है वो 3 4 5 है। तो कुल मिला के इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। फर्स्ट वी राइट नंबर ऑफ रोज, आफ्टर दैट वी राइट नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हुआ। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम चूंकि इक्वल आ रहे हैं इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इट्स ओके। अब अगर आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया है तो थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। देखा जाए इसको भी आपको पता है, पहले से ही मालूम कि रो मैट्रिक्स तो होती क्या है, इंटरमीडिएट से ही पता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो और एनी नंबर ऑफ कॉलम। सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इन व्हिच ओनली वन रोज एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। ओनली वन रोज, एग्जांपल सी हियर एग्जांपल, ओनली वन रोज 1 3 0 4 5। सी हियर, here is only one row and column, first column, second column, third column, fourth column, fifth column। तो कॉलम 5 है बट नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 है। तो कुल मिला के इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 1 क्रॉस 5 का, रो इनटू कॉलम। तो देखेंगे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसका पहला नंबर, इससे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ये रो मैट्रिक्स इसलिए कहा जा रहा है कि रो क्योंकि इसमें सिंगल रो है और एनी नंबर ऑफ। तो ए मैट्रिक्स व्हिच कंटेन्स ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज नोन एज रो मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम नेक्स्ट डिफिनेशन दे सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अब इस डिफिनेशन से आप स्वतः अर्थ निकाल सकते हैं। एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो और एनी नंबर ऑफ रो, सिंगल कॉलम एनी नंबर ऑफ रो। तो एग्जाम्पल के बतौर अगर इसी को हम इस तरीके से लिख दें, इस तरीके से लिख दें 1 3 0 4 5, इस तरीके से लिख दें तो देखेंगे ये आपका फर्स्ट रो, सेकंड रो, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है पृथ्वी के समानांतर वो रो, हॉरिजॉन्टल वो रो कहलाएगी। तो ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया, फोर्थ रो हो गया, फिफ्थ रो हो गया। लेकिन कॉलम क्या, जो पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर लंबवत, तो कॉलम तो एक ही है, तो कॉलम एक ही है और नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5। तो अभी आप डिफिनेशन दे रहे थे कि ए मैट्रिक्स इन व्हिच there is only one column
and any number of rows is known as column matrix. अब इस column matrix का अगर आपको ऑर्डर लिखना है तो देखेंगे 1 2 3 4 5 कुल मिला के फिफ्थ रोज है। तो अगर फिफ्थ रोज है तो पहले हम रो लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, और कॉलम ओनली 1 है, तो ये 5x1 ऑर्डर का एक कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्यों किया गया, वो भी क्यों कहा गया, वो भी समझाया गया आपको, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 1 कॉलम। ओके, नेक्स्ट आपके सामने आते हैं इस डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, यहां से ध्यान दीजिएगा, काम की चीजें हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, तो कहा जाए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। किसी भी शर्त है तो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे यदि उस मैट्रिक्स में प्रिंसिपल लीडिंग डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो। लाइक एग्जांपल 1 0 0 0 2 0 0 0 4। देखा जाए फर्स्ट ऑफ ऑल यह स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, तो देखेंगे ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया और ये थर्ड रो हो गया, कुल मिला के 3 रोज हो गए। कॉलम्स को देखा जाए तो ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम हुआ और ये थर्ड कॉलम हुआ। तो कुल मिला के इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो 3 रोज और 3 कॉलम्स होने के कारण इस मैट्रिक्स में चूंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को ही आप डायगोनल मैट्रिक्स कह रहे हैं। डेफिनेशन क्या दे रहे हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, चाहे वो 3x3 का हो, चाहे वो 2x2 का हो, चाहे वो 4x4 का हो, चाहे वो n×n का हो, द नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स तब कहते हैं जब उसके लीडिंग डायगोनल, ये क्या हुआ, लीडिंग डायगोनल, हम प्रिंसिपल डायगोनल भी इसे हम बोलते हैं, उसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों। तो यहाँ देखिए लीडिंग डायगोनल में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वह 1 2 एंड 4 हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद फिर हम बात करते हैं, इससे आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम जीरो आर नल मैट्रिक्स। जीरो आर नल मैट्रिक्स, थोड़ा सा इसको पहले हमें बताना चाहिए था। जीरो आर नल मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे या किसी भी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स है, यहाँ शब्द ऐड किया जा रहा है, किसी भी मैट्रिक्स को, मीन्स दैट मे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट मे बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहेंगे यदि उसमें लाई करने वाले सारे इंटीज, सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों। लाइक एग्जांपल, इट इज null matrix, it is 0 0 0 0 0 0 0 0 0, it is also a null matrix because all the elements are 0. It is also 0 0 0, it is also a null matrix. इस null matrix का अगर ऑर्डर देखेंगे तो 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 रोज 2 कॉलम्स, इसका मतलब यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें देखेंगे 3 रोज हैं और 1 2 3 4 4 कॉलम्स हैं, तो ये 3x4 का रो इंटू कॉलम एक नल मैट्रिक्स है। इसको डिनोट करने के लिए हम ऐसे भी लिखते हैं, जी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ओ से, मतलब जीरो से डिनोट कर देते हैं, इसको लिखते हैं 0 2x2 या O 2x2, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 0 3x4। तो ये 3x4 की एक नल मैट्रिक्स हो गई, ये 2x2 की एक नल मैट्रिक्स हुई। आपने डेफिनेशन में भी कहा है कि किसी भी मैट्रिक्स को, मीन्स दैट मे बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दैट मे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे यदि उसमें लाई करने वाले सारे के सारे इंटीज, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों। तो ये हो गया आपका जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। हाँ, इसके बाद हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात किए हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ शर्त लगी हुई थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे बशर्ते
उसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों। अब अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स समझने लगे हैं तो अब नेक्स्ट बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है इसको समझा जाए। तो क्या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए यहां भी शब्द स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें भी शब्द स्क्वायर यूज कर रहे हैं, पकड़े। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि यदि लीडिंग डायगोनल को छोड़कर उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों और लीडिंग डायगोनल पे लाई करने वाले सारे एलिमेंट्स सेम हों। लाइक एग्जाम्पल ए इक्वल्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 या ले लिया 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2. See here, in this matrix there are 4 rows and 4 columns. It means 4 rows and 4 columns, number of rows and number of columns are equal. Since the number of rows and number of columns are equal, therefore example taken as A, that is a square matrix. अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं डायगोनल एलिमेंट्स कह रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स कह रहे थे, आप स्क्वायर मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कह रहे हैं, दोनों में अंतर क्या रहा है। तो देखेंगे लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को देखा जाए, लीडिंग डायगोनल को एलिमेंट को छोड़कर बाकी दोनों में सिमेट्री आ रही है कि रिमेनिंग एलिमेंट्स जीरो हैं। लेकिन यहाँ लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स में, और यहाँ लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं दैट्स आर सेम। मीन्स आप ये कह रहे हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू क्या है, के फॉर एवरी आई एंड जे, इस तरीके से, या सिंपली कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हों, सेम। फिलहाल नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स के बाद फिर बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है इसको देखा जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे यदि उस मैट्रिक्स में लाई करने वाले सारे एलिमेंट्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों और प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिटी मतलब 1 हो। लाइक एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सी एग्जाम्पल, in this matrix there are 3 rows and 3 columns, means it is a 3 cross 3 matrix. Since the number of rows and number of columns are equal, therefore it is a square matrix. But you can say principal diagonal के सारे एलिमेंट्स 1 हैं और रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। तो यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 हों, रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स 0, तो उस मैट्रिक्स, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और इसे डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर आई यूज करते हैं और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं I3 क्रॉस 3, या कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं I3। I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी कौन, वही मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। 3 क्या डिनोट कर रहा है, इसका तो वह 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स कह रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहे हैं। तीनों में डिफरेंसेज आपको समझ में आना चाहिए, कब स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह रहे हैं, कब स्क्वायर मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह रहे हैं, और कब स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहे हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं, दैट इज नोन एज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर, triangular matrix. There are 2 types of triangular matrix. One is known as lower triangular matrix. Lower triangular matrix. Lower triangular matrix. हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को क्लासिफाई कर दिया
कि एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले इसको समझा जाए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि उस मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एबव लाई करने वाले सारे के सारे एलिमेंट जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल के एबव लाई करने वाले सारे के सारे एलिमेंट क्या हों, जीरो। तो ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। प्रिंसिपल डायगोनल के एबव देखेंगे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, मतलब इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो कुल मिला के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने के कारण यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप कह रहे हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं, देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं है, बट प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं और एक ट्रायंगल के फॉर्म में। तो इसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डू नॉट बी कंफ्यूज कि ये ट्रायंगल तो ऊपर बना हुआ है, इसे अपर ट्रायंगुलर कहना चाहिए, नो। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज़ ट्रायंगल इज इन डाउनवर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है, इसको जाना जाए। क्या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम, चाहे वो 3x3 का हो, चाहे वो 2x2 का हो, चाहे वो 4x4 का हो, चाहे 5x5 का हो, जो भी है, चाहे वो n×n का हो, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि उस मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे लाई करना, बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स लाई कर रहे हो सब के सब जीरो। लाइक एज एग्जांपल 1 2 3 0 2 0 0 0 3, यू कैन सी इट। ये आपका हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे लाई करने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। तो ये आपका कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखा जाए सबसे पहले जब हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन किया और स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन करने के बाद उसके क्लासिफिकेशन में आने लगे, तो पहला क्लासिफिकेशन दिया गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स कह सकेंगे, लेकिन कब, ये याद रखना होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहने लगेंगे, लेकिन कब कहेंगे उसकी भी डिफिनीशन आपको समझ में आनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, वो भी डिफिनीशन आपको क्लियर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि वह मैट्रिक्स या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या तो वह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। मतलब एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट इज आइदर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज, ये भी आपने पढ़ रखा, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ये क्या होता है, इसको समझा जाए थोड़ा सा। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहा कि कोई भी मैट्रिक्स जो आपको दिया गया है, एनी मैट्रिक्स, उसका अगर ट्रांसपोज आपको निकालना है तो रो और कॉलम को हम आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। रो और कॉलम को हम आपस में क्या करेंगे, रो को कॉलम में और कॉलम को क्या करेंगे, रो में इंटरचेंज कर देंगे। तो जो नई मैट्रिक्स तैयार होगी उसे हम ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कहेंगे। लाइक एज एग्जांपल, इफ A इक्वल्स 1 2 3 4 2 3 4 5, see we have taken a matrix A whose integers are 1 2 3 4 2 3 4 and 5. There are, in this matrix there are 2 rows and 4 columns, means it is a 2 rows and 4 columns, means it is a rectangular matrix. अब इसका अगर हमें ट्रांसपोज लिखना है तो इसके ट्रांसपोज को डिनोट करने के लिए या तो हम a डैश से डिनोट करते हैं इस तरीके से, या इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं a की पावर a टू द पावर t लिख देते हैं। मतलब इसको हम पढ़ते क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स a टू द पावर t नहीं, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है,
ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के लिए हम करेंगे क्या, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए क्या है, ये आपको ये दिया गया है, ए मैट्रिक्स दिस, लेकिन इसका क्या करना है ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ये फर्स्ट रो है, इसको क्या बना देंगे, फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ये सेकंड रो, इसको क्या बना देंगे, सेकंड कॉलम, तो ये 2 3 4 5। अब ये जो मैट्रिक्स मिली इसमें देखें 2 कॉलम हो गया और रो कितने हो गए, 1 2 3 4, और फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। तो 4 रो एंड कॉलम कितने हो गए 2, तो ये 4 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स हो गए। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है तो रो को कॉलम में क्या करिए, चेंज कर दीजिए, या कॉलम को किस में कर दीजिए, रो में इंटरचेंज कर दीजिए। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स मिलती है वह ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगी। उसको डिनोट करने के लिए या तो ये डैश से डिनोट करेंगे या तो ए टू द पावर टी, जिसको हम पढ़ते क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होती है ये भी समझेंगे। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज किया गया, जिसकी एंट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो। कोई जरूरी नहीं सारे के सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर ही हों। लाइक एज एग्जांपल से इट इज आई, इट इज 1 प्लस आई, इट इज 2 एंड इट इज माइनस आई, ये लिख दिया हमने, या 3 माइनस आई। देखेंगे ये एंट्री पूरी तरह रियल नंबर है, लेकिन ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 प्लस आई भी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 माइनस आई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स तो नहीं, लेकिन अगर कुछ एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो उस मैट्रिक्स को हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का अगर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना हो तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालने के लिए, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ये निकालने के लिए, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालने के लिए, इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालने के लिए सबसे पहले इसका नोटेशन जो लगाते हैं, ए पर बार लगा देते हैं, पढ़ते हैं ए बार। कुल मिला के ये होगा कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। सही सही पढ़ा जाए तो लिखा हुआ है कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स ए। और कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स ए लिखने के, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकले, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर को माइनस से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ प्लस आई है, इसको क्या करेंगे, माइनस आई। यहाँ 1 प्लस आई है, आई के साथ प्लस है, रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई। इसका 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट 1 माइनस आई। ये 2 चूंकि रियल नंबर तो इसका कॉन्जुगेट आपको नहीं लिखना है, और ये 3 माइनस आई है, इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस आई। इस तरीके से हो गया एक कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में कहा गया आपसे कि कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे एंट्रीज, सारे के सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर ही हों, उसमें कुछ एलिमेंट्स रियल नंबर भी हो सकते हैं। और उस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए हैं उनको उनके कॉन्जुगेट से डिनोट कर देते हैं। जो नई मैट्रिक्स बनती है वो क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाएगी। अब अगर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई हो तो इसी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर दें, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लें। कॉन्जुगेट पहला नंबर तो मैट्रिक्स ए लिया, ए का फिर कॉन्जुगेट लिया, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लिया, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लिया, और उस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम है, सॉरी ये फर्स्ट रो, इसको क्या बना देंगे, फर्स्ट कॉलम, तो हो गया माइनस आई, ये हो गया 1 माइनस आई। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दिया हो तो ये हो गया 2 3 प्लस आई। अब ये जो नई मैट्रिक्स हमको मिल रही है इसी को हम कहते हैं ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। क्लियर, और इसको कंटिन्यू कर देते हैं ए स्टार से। ये हो गया। तो हम इस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे। हाँ, थोड़ी सी बात और कर लिया जाए, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। जब टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो बात कर देते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स ये, और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा नाम है।
किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि उसका डिटर्मिनेंट निकालने पर रिजल्टेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, नल मैट्रिक्स है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कहा गया हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने पर रिजल्टेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए। और किसी भी अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जाए और डिटर्मिनेंट निकालने पर अगर इसका रिजल्ट नॉन जीरो आ रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये तो बात हो गई सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, याद रखना होगा क्योंकि सब धीरे जरूरत है कि फिर हम आपको याद दिलाते रहेंगे। ये चीज़ें बताई गई लेकिन फिर भी याद दिलाया जाता रहेगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में एडिशन की बात करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। मैट्रिक्स का एडिशन भी आप पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं, का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को हम कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हमें देखना और समझना है। और जानते भी हैं किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का एडिशन या किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन सिर्फ उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब दोनों के दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों, दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या हों, सेम ऑर्डर के हों। टू मैट्रिक्स में बी एडेड or subtracted if they are of the same order. Like example, if A equals 1, 2, 3, 4 and B equals 5, 6, 1, 0. There are two matrices. तो अब देखा जाए क्या इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो आपको डेफिनेशन में बोला गया, कहा गया आपसे कि दो मैट्रिक्स का एडिशन या दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मतलब कुल मिला के ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। यहाँ भी देखें दो रो और दो कॉलम्स हैं, तो यह भी क्या है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। इसका इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन या इन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पॉसिबल है क्योंकि यह दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, सेम ऑर्डर के हैं। और आपको यह भी मालूम कि मैट्रिक्स का एडिशन करते समय हम करते क्या हैं कि करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करते हैं। लाइक एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, ये मैट्रिक्स ए लिख दिया गया, ये ऑपरेशन लिख दिया गया प्लस, और ये लिख दिया गया दूसरा मैट्रिक्स 5, 6, 1, 0, ये लिख दिया गया। अब आपसे डेफिनेशन में कहा गया कि एडिशन पॉसिबल तब है जब दोनों सेम ऑर्डर के हों, तो आपने पहले ही तय कर लिया कि ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं। अगर दोनों सेम ऑर्डर के तो इनको ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ऐड करने के लिए आपसे क्या कहा गया कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, क्या मतलब, तो उसको समझने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ भी दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। तो संगत को संगत से, तो मतलब 1 को किससे ऐड करेंगे, 5 से। यहाँ देखिए 2 को किससे ऐड करेंगे, 6 से, 2 + 6। ऐसे ही यहाँ देखिए 3 को किससे ऐड करेंगे, 1 से। क्यों, क्योंकि ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो दूसरे मैट्रिक्स में सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 1 है। दूसरे पहले मैट्रिक्स से सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट कौन है, तो वो आप कहेंगे 4 है, तो ये 4 लिखे। तो करस्पॉन्डिंग दूसरे मैट्रिक्स में सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट कौन है, तो पता चला वह 0 है, तो इसको किसके साथ ऐड कर देंगे, 0 के साथ। तो अब इसको जब फाइनली ऐड करेंगे तो 1 + 5 ये आपको मिल गया 6, 2 + 6 आपको मिल गया 8, 3 + 1 मिल गया आपको 4, और फिर 4 + 0 आपको मिल गया 4। तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट। तो इसका दो मैट्रिक्स का एडिशन या दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों सेम ऑर्डर को कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करते हैं, या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। लाइक एज एग्जाम्पल, अगर ए में से बी को आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है
तो सब्ट्रैक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब यहाँ तो ऐड कर रहे थे, यहाँ 1 में से 5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -4। 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -4। यहाँ 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2, और यहाँ 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली क्या आएगा, 4। ये हो गया आपका a माइनस b। तो अब हम लोग कल बात करेंगे प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट के साथ क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं वो भी देखा जाएगा और समझा जाएगा। फिर हम लोग धीरे धीरे अगले प्रोसेस पे इंक्रीज करेंगे। थैंक्स।